And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 16th June 2020. Before I proceed, I must say that I'm really thankful to you all guys for the kind of warm welcome you people gave me on my return after 4 or 5 days of gap. We are really grateful to you guys. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about South China Sea and India. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, and this is also useful for political science optional students. सबसे पहले साउथ चाइना सी का लोकेशन देखते हैं. So if you see, South China Sea is in the transition position of Indian Ocean and Pacific Ocean. यहाँ चाइना के सदर्न रीजन में साउथ चाइना सी लोकेटेड है, and it is surrounded by other countries like Vietnam, Malaysia, Brunei, Philippines and Taiwan. तो ये है साउथ चाइना की सी का लोकेशन. साउथ चाइना सी के अंदर इस तरह के कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन उसमें जो सिग्निफिकेंट सीरीज ऑफ आइलैंड्स या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं वो हैं परासल आइलैंड्स एंड स्पार्टले आइलैंड्स. माइंड इट, ये बस एक आइलैंड नहीं है, दे आर सीरीज और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, and such series or group of islands are known as archipelagos. So two archipelagos, Paracel and Spratly archipelagos, are very significant क्योंकि they are very much rich in oil and natural gas. तो उनका काफ़ी सारा significance है. Overall South China Sea का significance देखते हैं. This region is very much rich in terms of natural resources like oil, natural gas, fisheries and mineral resources, खासकर heavy weight मिनरल रिसोर्सेज. एंड अगर ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड की बात की जाए, आपको पता है, आप देखो ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का. कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बहुत सारे जो मर्चेंट वेसल्स होते हैं फॉर द ट्रेड पर्पस दैट मूव्स थ्रू दिस सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का. और पूरे दुनिया भर का 1/3 ट्रेड इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए फिर साउथ चाइना सी से होते हुए गुजरता है. अगर वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो ओवरऑल $3.5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से और साउथ चाइना सी के रीजन से होते हुए. एंड ओवरऑल अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 1/3 या 33% ट्रेड वर्ल्ड का इस रीजन के थ्रू फ्लो करता है. तो इससे आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि ये रीजन कितना ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट है. अगर कोई भी कंट्री इस एरिया पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लेता है तो नेचुरली उसका ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल बढ़ जाएगा, बिकॉज 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड फ्लोज और कंडक्टेड थ्रू दिस रीजन. ट्रेड ऑफ सम मेजर कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, साउथ कोरिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ US फ्लोज थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड साउथ चाइना सी. अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का लगभग 50% ट्रेड इसी रूट के थ्रू कंडक्ट किया जाता है. तो एक बात तो अब क्लियर है कि इस रीजन का स्ट्रेट ऑफ मलक्का का और पूरा का पूरा साउथ चाइना सी का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है. और इस कारण से ही जो भी दुनिया के मेजर सुपर पावर्स हैं दे ऑलवेज ट्राई टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ओवर दिस रीजन. सो अब जरा देखते हैं attempts made by different superpowers of the world to develop control over this region South China Sea. तो सबसे बड़ा no doubt जो major superpower है वर्ल्ड का that is the US, and US has maintained significant control or influence over South China Sea through a series of air base, naval base in South China Sea, mainly over Philippines. देखो पिछले 40 सालों से US has been without doubt the major superpower of the world, और इस कारण से उसने इस एरिया पे अपना इन्फ्लुएंस, हेजेमनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड कर रखा है, खासकर फिलीपींस की मदद से. देखो फिलीपींस इज़ अ फॉर्मर कॉलोनी ऑफ US. अभी के टाइम में वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन चूंकि ये पहले US का एक कॉलोनी रह चुका है, दैट इज़ वाई फिलीपीन शेयर्स
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ यूएस, और इस कारण से फिलीपींस के ऊपर यूएस ने अपने कई सारे मिलिट्री या एयर बेस बना रखे हैं। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, आपको ये नाम याद नहीं करने बट फिर भी एक बार देखो, जैसे एंटोनियो एयर बेस, लुम्बिया एयर बेस, ये सब बासा एयर बेस, फोर्ट मैक्सेसे, ये सारे जो बेसेस हैं, मिलिट्री बेस हों या एयर बेस हों या नेवल बेस हों, ये सब यूएस ने बनाया है फिलीपीन के ऊपर। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है ये जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है उसके ऊपर अपनी एक हेजेमनी कंट्रोल बनाई जाए। लेकिन अब चाइना इज चैलेंजिंग द डोमिनेंस ऑफ यूएस ओवर साउथ चाइना सी। आप सबको पता है दैट इन 21st सेंचुरी चाइना हैज़ इमर्ज्ड एज सेकेंड मेजर सुपर पावर at global stage who can challenge the hegemony of US at international level। और इस कारण से चाइना ने सबसे पहले अपने प्रॉक्सिमिटी वाले एरिया में, अपने नेबरहुड रीजन में यूएस के एक्सेसिव इन्फ्लुएंस को कर्ब करना शुरू किया, काउंटर करना शुरू किया। और चाइना के नेबरहुड में आता है ये साउथ चाइना सी रीजन, और यहाँ पे यूएस का एक्सेसिव डोमिनेंस को नेचुरली चाइना अब काउंटर करेगा। And now China has started to counter US hegemony in this region। चाइना ने 2009 में एक नया मैप रिलीज़ किया और उस मैप के अंदर उसने इस तरह का एक 9 डैश लाइन रिलीज़ किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 9 डैश लाइन्स हैं। उसने अपने मैप में ये 9 डैश रिप्रेजेंट किए। आप देख सकते हैं 1 2 3 इस तरह से करके 9 डैश उसने रिप्रेजेंट किया और उसने कहा कि दिस इज़ एक्सटेंडेड टेरिटरी ऑफ चाइना। ऐसा चाइना ने क्लेम किया कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है दिस बिलोंग्स टू चाइना इंक्लूडिंग द सी पोर्शन। और उसके पीछे का उसने ग्राउंड बताया कि यहाँ पे जितने भी सारे आइलैंड्स हैं जैसे कि पारासल आइलैंड्स या स्प्राटले आइलैंड या स्कारबोरो आइलैंड, ऑल ऑफ देम हैव बीन ट्रेडिशनली बिलोंगिंग टू द किंग डायनेस्टी ऑफ चाइना, जो वहाँ पे 14th सेंचुरी से ही रूल कर रही है। तो उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किंग डायनेस्टी के स्क्रिप्चर्स दिखाए, उनके ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग सुनाए जिसमें इन सारे आइलैंड्स की बात की गई और उसके बेसिस पे इन्होंने क्लेम किया कि ये पूरे आइलैंड्स ट्रेडिशनली चाइना को बिलोंग करते हैं और इस कारण से नाउ चाइना इज़ पुटिंग इट्स कंट्रोल ओवर ऑल दीज आइलैंड्स, और इसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा एरिया चाइना को बिलोंग करना चाहिए। और उसके बाद जब चाइना ने इस पूरे एरिया पे अपना लेजिटिमेट कंट्रोल बता दिया, उसके बाद चाइना स्टार्टेड टू अक्वायर आइलैंड्स इन दीज रीजन्स, और उन आइलैंड्स पे चाइना स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स ऑल्सो। बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी इन सारे आइलैंड्स पे चाइना इंस्टॉल कर चुका है। बहुत सारे नेवल बेसेस भी चाइना इस सारे रीजन में बना रहा है। तो सरल शब्दों में चाइना इज़ नाउ डायरेक्टली चैलेंजिंग द हेजेमनी और ओवर डोमिनेंस ऑफ यूएस ओवर साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी एक तरह का जोन ऑफ प्रॉक्सी वॉर बन चुका है। प्रॉक्सी वॉर मतलब व्हेन टू मेजर पावर्स डू नॉट इंगेज और कन्फ्रंट डायरेक्टली, वो जब आपस में डायरेक्ट फाइट नहीं करते हैं दो मेजर पावर, वो इनडायरेक्ट तरीके से एक दूसरे पे अटैक करते हैं या कन्फ्रंट करते हैं, वैसे सिचुएशन को हम कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। और ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है वो इसी लाइन से, इसी स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन एन एसे रिटन बाय सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर ली हुसैन लूंग। उन्होंने एक हाल फिलहाल में एक पर्सपेक्टिव एसे लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है दैट साउथ चाइना सी इज़ के अंदर द यूएस इज़ अ रेजिडेंट पावर। रेजिडेंट पावर मतलब यूएस वहाँ पे ऑलरेडी रिसाइड कर रहा था, वहाँ का एक इस्टेब्लिश्ड पावर था ओवर साउथ चाइना सी, बट चाइना इज़ द रियलिटी ऑन द डोर स्टेप। No one can deny that China is there as a challenger to the US hegemony over South China Sea. And this has led to the beginning of indirect conflict, a kind of proxy war in South China Sea. और इसको proxy war इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं कर रहा है यूएस नेवी या यूएस आर्मी को। चाइना इज़ लीडिंग टू casualties on countries who have been an economic or military partner of the US। जो कंट्री जिस एरिया में यूएस के साथ इंटीग्रेटेड थे, चाहे वो मिलिट्रीली या इकोनॉमिकली, उन सारे कंट्रीज से कन्फ्लिक्ट कर रहा है चाइना, उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है चाइना। दैट इज़ वाई सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर हैज़ टर्म्ड दिस एज अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं पिछले 6 महीने में चाइनीज़ नेवी फोर्स्ड अ सिंकिंग ऑफ ए फिशिंग बोट ऑफ वियतनाम। इट फोर्स टू टर्न अवे नेवल शिप ऑफ अ फिलीपींस। तो फिलीपींस के एक नेवल के शिप को चाइनीज़ शिप ने थ्रेटन किया, उसको अपना रास्ता छोड़ करके मुड़ने को फोर्स किया।
तो जो फिलीपींस का क्लेम्ड आइलैंड था उसको भी फोर्सफुली चाइना ने अक्वायर किया। उसके अलावा चाइनीज़ नेवी फोर्सफुली स्टॉप्ड ऑपरेशन ऑफ अ मलेशियन ड्रिलिंग कंपनी इन दिस साउथ चाइना सी। तो ये एक प्रॉपर एग्जांपल है कि किस तरह से चाइना और चाइनीज़ नेवी अपना डोमिनेंस साउथ चाइना सी रीजन में बिल्ड कर रहे हैं और यूएस की हेजेमनी को चैलेंज कर रहे हैं, बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बाय थ्रेटनिंग the allies of US in South China Sea, and the kind of proxy war has started in South China Sea. अब साउथ चाइना सी का सिग्निफिकेंस देखते हैं इंडिया के लिए। तो साउथ चाइना सी के सिग्निफिकेंस को फॉर इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस में आ सकता है दैट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ चाइना सी विल स्ट्रेंथन द स्ट्रिंग ऑफ पल्स डायलेमा ऑफ इंडिया। ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स डायलेमा ऑफ इंडिया को मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। देखो, चाइना इज़ बिल्डिंग सीरीज ऑफ पोर्ट्स इन द नेबरहुड ऑफ इंडिया, जैसे कि क्याकफाओ पोर्ट इन म्यांमार, चिटगोंग पोर्ट इन बांग्लादेश, देन हम्बनतोता पोर्ट इन श्रीलंका, देन माले पोर्ट इन मालदीव्स एंड देन ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान। और ये जो सीरीज ऑफ पोर्ट्स चाइना बिल्ड कर रहा है इंडिया के नेबरहुड में, इसको दुनिया के बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि विथ हेल्प ऑफ दिस सीरीज ऑफ पोर्ट्स दैट चाइना इज़ बिल्डिंग इन इंडियाज़ नेबरहुड, चाइना इंडिया को इनसर्कल कर रहा है, घेर रहा है और एक तरह से इंडिया के ऊपर एक तरह का थ्रेट बिल्ड कर रहा है। इसी को वो नाम देते हैं कि स्ट्रेटेजिक नाम देते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स डायलेमा ऑफ इंडिया, कि इंडिया को इनसर्कल कर रहा है चाइना। तो एक बार जब साउथ चाइना सी पे चाइना का इन्फ्लुएंस और बिल्ड हो जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉक्सी वार, अब जब चाइना अपना क्लेम साउथ चाइना सी पे बिल्ड करना शुरू कर दिया उसने अगेंस्ट यूएस, तो naturally the string of pulse dilemma will further strengthen up. Second, the conflict in South China Sea will lead to more militarization of South China Sea and thus will lead to instability in South China Sea. तो इस रीजन में जब यूएस और चाइनीज़ नेवी आपस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट करेंगी तो पूरा का पूरा रीजन इनस्टेबल होगा, और जब इनस्टेबल होगा तो इंडियन नेवी या इंडियन मर्चेंट वेसल्स को यहाँ से मूव करने में प्रॉब्लम्स होंगी। उसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखते हैं साउथ चाइना सी का इंडिया के लिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अबाउट 50% ऑफ इंडियाज़ ट्रेड इज़ कंडक्टेड थ्रू साउथ चाइना सी, तो काफ़ी ह्यूज सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा साउथ चाइना सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आपको पता है इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन बिल्डिंग गुड टाइज विद दीज 10 आसियान कंट्रीज। ये 10 जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ बेहतर टर्म्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है इंडिया अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लेकिन अगर इस ये पूरा रीजन टर्बुलेंस में आ जाएगा तो नेचुरली एक्ट ईस्ट पॉलिसी विल नॉट बी सक्सेसफुल। उसके अलावा इंडिया की जो कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड, इट गॉट 2 ऑयल फील्ड्स on Spratly and Paracel Island in South China Sea on lease. It got Spratly from Philippines and Paracel from Vietnam on lease from in South China Sea to extract oil and natural gas. लेकिन जब से चाइना ने इन दोनों आइलैंड्स को डिस्प्यूटेड कर दिया है तब से ONGC विदेश लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट रुक गया है। सो दिस इज़ अनदर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट इन साउथ चाइना सी ऑन इंडिया। अब जरा देखते हैं व्हाट इंडिया इज़ डूइंग विथ रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी। इंडिया की पॉलिसी क्या रही है अभी तक ऑन साउथ चाइना सी। तो यह है साउथ चाइना सी और उसके ऊपर है 9 लाइन, और यहाँ पे ये जो 2 मेजर सुपर पावर हैं द US एंड चाइना, दे आर कन्फ्रंटिंग नाउ, दे आर लीडिंग टू अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर। और उसमें इंडिया नो डाउट इज साइडिंग विथ US, और कई सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं दैट प्रूव्स दैट इंडिया हैज साइडेड और इंडिया हैज सपोर्टेड US अगेंस्ट चाइना एटलीस्ट ऑन साउथ चाइना सी इशू। इंडिया ने क्वाड ग्रुप बनाया है। क्वाड ग्रुप भी मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, इट इज़ अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप बिटवीन 4 कंट्रीज दैट आर इंडिया, जापान, Australia and the US, whose main objective is to limit the rise of China and Chinese Navy in the पैसिफिक रीजन, स्पेशली इन द साउथ चाइना सी। उसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज एक तरह का जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन, जापानीज़ एंड अमेरिकन नेवी, जिसका भी पर्पस है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को साउथ चाइना सी में कर्ब किया जाए। उसके अलावा इंडिया का सपोर्ट है टुवर्ड्स द रीबैलेंस एशिया पॉलिसी ऑफ US अगेंस्ट चाइना। दैट इज़ अनदर इंडिकेशन दैट इंडिया इज सपोर्टिंग और साइडिंग विथ US ऑन साउथ चाइना सी इशू।
अब इस आर्टिकल में कंक्लूजन में, इस आर्टिकल को सबसे पहले समझ लो, विजय गोखले साहब ने लिखा है। ही इज अ फॉर्मर IFS ऑफिसर एंड ही हैज़ बीन इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना। और इस आर्टिकल में लिखते हुए वो कंक्लूड करते हैं कि देखो, साउथ चाइना सी इज ए ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन मतलब ये दुनिया के हर एक कंट्री को बिलोंग करता है कॉमन तरीके से, ये किसी एक कंट्री को पर्टिकुलरली बिलोंग नहीं करता है। तो इसको बाइनरी टर्म्स में देखना कि या तो ये US का होगा नहीं तो चाइना का होगा, दिस इज़ नॉट राइट। ग्लोबल कॉमन वो सारी चीज़ें होती हैं जो किसी एक कंट्री की नहीं होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका, वो कोई एक कंट्री क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा है। वैसे ही साउथ चाइना सी है, इट इज़ अ ग्लोबल कॉमन एंड इंडिया शुड स्ट्राइव टू कीप इट फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस, नाइदर US नॉर चाइना शुड कंट्रोल इट। इंडिया की पॉलिसी, ऐसा कह रहे हैं विजय गोखले साहब की, इंडिया की पॉलिसी US को सपोर्ट करना नहीं होना चाहिए। इंडिया शुड बी ट्राइंग टू कीप दिस रीजन कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ आइदर US और चाइना। तभी जाकर के इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं इस रीजन में वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाएंगे। देखो, अभी तक इनका ऐसा मानना है या बाकी भी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि US इज सपोर्टिंग इंडिया मेनली बिकॉज ऑफ चाइना। और एक बार अगर चाइनीज़ थ्रेट खत्म हो जाएगा तो फिर US ऑल्सो विल नॉट केयर अबाउट इंडियाज़ इंटरेस्ट। सो इंडिया शुड टेक अ कॉशस बैलेंस्ड अप्रोच। जब तक चाइना फैक्टर है तब तक US इज टेकिंग केयर ऑफ इंडियाज़ इंटरेस्ट। वंस चाइना फैक्टर इज ओवर, US विल नो डाउट विल नॉट सपोर्ट इंडियाज इंटरेस्ट। तो इस कारण से इंडिया को एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहिए इन साउथ चाइना सी। इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी फॉर इंडिया एंड हाउ इंडिया कैन मैक्सिमाइज इट्स इंटरेस्ट इन साउथ चाइना सी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. It can also be utilized in political science optional paper, especially in the topic power projection. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये स्वीडन बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयर बुक। और इस ईयर बुक में वो दुनिया भर के किस कंट्री के पास कितना वेपन है और किस किस तरीके का वेपन है वो सब कुछ वो पब्लिश करते हैं। तो न्यूक्लियर वेपन कितने हैं, नॉन न्यूक्लियर वेपन कितने हैं, अगर केमिकल वेपन है तो केमिकल वेपन कितने हैं, वो सब कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है इन इट्स ईयर बुक। और जो लेटेस्ट ईयर बुक पब्लिश हुआ है 2020 का, उसके रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने 10 न्यूक्लियर वेपन और ऐड किए हैं इन इट्स किटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स 2019 बेस। तो 2019 में इंडिया के पास 140 न्यूक्लियर वॉर हेड्स थे। अब इंडिया के पास 150 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हो गए हैं। बट फिर भी इंडिया चाइना और पाकिस्तान दोनों से पीछे है। चाइना के पास टोटल 320 वॉर हेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉर हेड, जबकि पाकिस्तान के पास 160 न्यूक्लियर वॉर हेड हैं अकॉर्डिंग टू दिस ईयर बुक। तो अभी भी इंडिया पाकिस्तान से लगभग 10 पीछे है एज फार एज न्यूक्लियर वॉर हेड्स आर कंसर्न। अगर ओवरऑल देखा जाए तो रसिया के पास सबसे ज़्यादा है न्यूक्लियर वॉर हेड और उसके नंबर्स हैं 6375, फॉलोड बाय यूएस जिसके नंबर से 5800। और अगर ऑफिशियली देखा जाए तो दुनिया में बस 9 ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने एक्नॉलेज किया है, जिसने एक्सेप्ट किया है दैट येस दे हैव न्यूक्लियर वेपन, दैट मीन्स दे आर न्यूक्लियर वेपनाइज्ड कंट्रीज। और वो 9 कंट्री हैं द यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। अब इस पूरे इन्फॉर्मेशन को हम कैसे यूज करेंगे? देखो, एक तो हो सकता है कि हमसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, उसके अलावा मेंस में देखो हम कैसे यूज करेंगे। तो मेंस में जो हमारा जीएस पेपर 2 है, इंटरनेशनल रिलेशंस वाला सेगमेंट, वहाँ पे सवाल आ सकते हैं रिगार्डिंग मिलिटराइजेशन और न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में न्यूक्लियराइजेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस तरह का कुछ सवाल आ सकता है। वहाँ पे ये सारे फैक्ट्स आप यूज कर सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू दिस सिप्री इंडेक्स ये डेटा है। तो वो एक आधा आपके फैक्चुअल पॉइंट से आप इंट्रो या कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा देयर माइट बी अ क्वेश्चन लाइक चैलेंजेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। इन सारे जगहों पे आप इसको एक फैक्चुअल पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में या कंक्लूजन पार्ट में। उसके साथ ही अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में भी इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है, खासकर पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज में, वहाँ पे पावर प्रोजेक्शन एक सब टॉपिक है, वहाँ पे इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
तो ज़रा इसको ब्रीफली समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा। देखो, न्यूक्लियर वेपन्स आर सोर्स ऑफ पावर प्रोजेक्शन। ये जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं आपके नंबर्स की 100, मेरे पास 150 है तो उसके पास 160 है, चाइना के पास 320 है, दिस इज़ नथिंग बट पावर प्रोजेक्शन। क्योंकि जिस कंट्री के पास जितना भी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है उन सबको मिला लिया जाए तो पूरे दुनिया भर में इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि पूरे दुनिया भर को 5 बार बर्बाद किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द प्रेजेंट एज इज़ नोन एज एज ऑफ ओवरकिल। जो पूरी दुनिया है इसको 5 बार डिस्ट्रॉय किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ द काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वी हैव एक्यूमुलेटेड ऑन द होल। तो इस कारण से हम अब हमारे पास चाहे जितने भी न्यूक्लियर वेपन हो, 150 हो, 140 हो, डज नॉट मैटर, वो इनफ है। अगर 1-2 भी इस्तेमाल कर लिया तो उसका डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। बट फिर भी वर्ल्ड कंट्रीज़ अपने नंबर्स बढ़ाने में लगे रहती हैं कि हमारे 160 हो गए, हमारे 170 हो गए, बिकॉज इट इज़ अ मेथड ऑफ पावर प्रोजेक्शन। एक जरिया है अपना पावर दिखाने का कि देखो मेरे पास इतने न्यूक्लियर वेपन है। इट इज़ अ मेथड, इट इज़ एन अप्रोच टू put pressure on your rival countries and use it as a projection of power। ये जो कॉन्सेप्ट है द एज ऑफ ओवरकिल, ये टर्म को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू आर राइटिंग एन एसे कि देखो इतना न्यूक्लियर वेपन हो चुका है कि वी हैव मूव्ड इन द एज ऑफ ओवरकिल। अगर हम उसको इस्तेमाल करने जाएं तो वी वॉन्ट बी जस्ट किलिंग एवरीवन लिविंग ऑन द अर्थ, बट वी विल बी ओवर किलिंग। उनको एक बार नहीं 5 बार मार सकते हैं। दिस टर्म वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड इन अ बुक दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1962 बाई मैक्स, where he said that world is armed enough to destroy itself multiple times. The next article is taken from environment segment. It is about pangolins who are now believed to be source of COVID-19. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. अब जरा समझते हैं पहले पैंगोलिन्स के बारे में। देखो, पैंगोलिन्स आर ए टाइप ऑफ मैमल्स। ये एक तरह के मैमल्स हैं और इनकी जो पूरी बॉडी होती है दैट इज़ कवर्ड विथ ए हार्ड प्रोटेक्टिव स्केल्स नोन एज केरेटिन। स्केल्स मतलब एक तरह का हार्ड सब्सटेंस, एक तरह का बॉडी कवर जो केरेटिन केमिकल से बना होता है। केरेटिन केमिकल वही केमिकल है जिससे हमारे नेल्स, हमारे नाखून बने होते हैं। इनकी पूरी की पूरी बॉडी इस तरह के हार्ड केमिकल सब्सटेंस केरेटिन से कवर्ड होती है। एंड दे जनरली फीड ऑन इंसेक्ट्स लाइक एंट्स एंड टर्माइट्स एंड दे आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब ये ज़्यादातर रात में ही घूमते हैं, दिन के टाइम में दे रिमेन इन देयर होल्स। एंड देयर आर 8 स्पीसीज ऑफ पेंगोलिन वर्ल्ड ओवर। आउट ऑफ दीज 8, 4 लिव्स इन अफ्रीका एंड रिमेनिंग 4 इन एशिया। तो 4 अफ्रीका के इन रीजन्स में रहते हैं, रिमेनिंग 4 इंडिया के या पूरे एशिया के इस रीजन में रहते हैं। देखो, ये सारे टर्म्स ऊपर से ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार इस तरह का सवाल वो पूछ सकते हैं। चूँकि पेंगोलिन इस साल न्यूज़ में है तो हो सकता है कि वो दें, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दें इन प्रीलिम्स की पेंगोलिन्स आर ए काइंड ऑफ मैमल्स हु आर फाउंड ओनली इन एशिया। दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। दे आर फाउंड in Asia as well as in Africa, and some pangolins who are found in regions around India, they are categorized as endangered, while Chinese pangolins, that is also a kind of species, Asian pangolin का एक टाइप है, सब टाइप है Chinese pangolin, that is categorized as critically endangered in IUCN Red Data Book। तो आपको सबके आठों के कैटेगरी इन IUCN रेड डेटा बुक याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इन 8 में से 4 तो एशियन पेंगोलिन है, एशियन में भी आपको सब याद नहीं रखना है। उसमें से जो 2 सब स्पेसीज़ हैं, इंडियन पेंगोलिन वाला सब स्पेसीज़ वो इंडेंजर्ड है, और चाइनीज़ पेंगोलिन्स दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये बस आपको याद रखना है। अब जरा समझते हैं पेंगोलिन्स के बारे में। देखो, अकॉर्डिंग टू IUCN पेंगोलिन्स आर वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल। इनका सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होता है अकॉर्डिंग टू IUCN। दे आर वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल्स एंड पेंगोलिन्स आर इलीगली हंटेड, ट्रैफिक्ड एंड ट्रेडेड फॉर मेनली 2 रीजन्स। फर्स्ट, फॉर देयर टेस्ट, दे आर कंसिडर्ड टू बी ए डेलिकेसी। बहुत सारे लोग साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जो रहते हैं वो पेंगोलिन्स को बहुत इंजॉय करके खाते हैं। उसके अलावा दे आर ट्रेडेड फॉर देयर स्केल्स, तो उनकी जो ऊपर का जो स्किन है, जो काफ़ी हार्ड स्किन है, उसके लिए भी इनकी ट्रेडिंग होती है, स्मगलिंग होती है।
दीज स्केल्स आर यूज्ड इन चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन। उसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में भी इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। इनके जो स्केल्स होते हैं, इनका जो ऊपर वाला जो हार्ड स्किन लेयर होता है, ये इतना हार्ड होता है कि इवन एक लॉयन भी इसको खा नहीं सकता अगर वो अपने आप को अच्छे से राउंड करके बैठ जाए एक पैंगोलिन तो। बट सिंस दे आर हेविली ट्रेडेड, एज यू सॉ दैट IUCN के हिसाब से पैंगोलिन्स आर वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल। इस कारण से इनका पॉपुलेशन लगातार गिरता जा रहा है, इनकी बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है और इस कारण से ही पैंगोलिन्स आर नाउ प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स लिस्ट। तो एक बार सा साइट्स को भी देख लेते हैं, ये क्या चीज़ होती है। साइट्स, इट स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़, और ये जो इट इज़ ए काइंड ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, आप देख ही सकते हैं इसका नाम ही है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इट ए काइंड ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट अमंगस्ट 183 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके एक दूसरे से ये प्रॉमिस किया अंडर दिस कन्वेंशन कि हम कोई भी इलीगल ट्रेड, चाहे वो फ्लोराज या फौनाज में, परमिट नहीं करेंगे। दिस एग्रीमेंट वॉज फाइनलाइज्ड इन 1975। इंडिया जॉइंड द साइट्स इन 1976। तो फिर से ध्यान रखना, इस तरह का स्टेटमेंट आ सकता है कि इंडिया इज़ मेंबर ऑफ साइट्स, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आ जाए इंडिया इज़ फाउंडिंग मेंबर ऑफ साइट्स तो वो सही नहीं है, क्योंकि जिस साल ये फाउंड हुआ था 1975 में, उस साल इंडिया इसका मेंबर नहीं था, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया नेक्स्ट ईयर में। अब जरा देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइट्स। तो देखो, साइट के अंदर जो स्पीसीज़ होते हैं, जो जानवर या फ्लोराज या फौनाज होते हैं, उनके 3 भाग में उनको क्लासीफाई किया गया है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 वाला वो क्लासिफिकेशन है, इसमें उन सारे फ्लोरास फौनास को रखा गया है हु आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, जिसके ऊपर थ्रेट है कि इनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है और उनके ऊपर एक्सटेंशन का थ्रेट है। उन सारे स्पीसीज़ को रखा गया अपेंडिक्स 1 में, और उनका ट्रेड, स्मगलिंग अलाउड बिल्कुल नहीं है। देखो, स्मगलिंग तो वैसे भी लीगल टर्म हुआ, बट उनका ट्रेड भी बिल्कुल परमिटेड नहीं है, एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो जो भी फ्लोरास फौनाज अगर रखे गए अपेंडिक्स 1 में, यानी कि उनका ट्रेड नहीं हो सकता। फॉरगेट अबाउट स्मगलिंग, स्मगलिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। अपेंडिक्स 2 में वो स्पेसीज रखे गए हैं जिनके लाइफ के ऊपर या जिनके पॉपुलेशन के ऊपर ओवरऑल थ्रेट नहीं है, बट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि अभी तक तो दे आर नॉट थ्रेटेंड, लेकिन अगर उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया, उनके हंटिंग को रोका नहीं गया, ट्रेड को रोका नहीं गया, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो उन थ्रेटेंड हो जाए। तो उन सबको रखा गया है अपेंडिक्स 2 में, और उन सारे स्पेसीज के ऊपर ट्रेड अलाउड तो है, ट्रेड इज परमिटेड बट इन रेगुलेटेड मैनर। और तीसरा अपेंडिक्स 3, अपेंडिक्स 3 में वो सारे स्पेसीज को रखा जाता है जो तो ना थ्रेटेंड है, ना उनके ऊपर कोई थ्रेट है फ्यूचर में, लेकिन फिर भी उनको रखा जाता है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। मैं बस आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मान लो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया साइट्स को, जिस इंटरनेशनल कन्वेंशन के जो मेंबर्स हैं उनको रिक्वेस्ट किया कि आप काऊ के ट्रेड को रोक दें। अब काऊ ना ही थ्रेटेंड है, ना ही काऊ के ऊपर फ्यूचर में कोई थ्रेट है, तो काऊ ना अपेंडिक्स 1 में आ सकता है ना अपेंडिक्स 2 में आ सकता है। लेकिन अगर इंडिया रिक्वेस्ट करता है कि आप काऊ के ट्रेड को रोक दें, उसके ट्रेड को रेगुलेट करें, और अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, देन काऊ विल बी पुट इन अपेंडिक्स 3। सो इस तरीके से अपेंडिक्स 3 में वो स्पेसीज रखे जाते हैं दैट आर गिवन प्रोटेक्शन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। अब ये जो पैंगोलिन है दैट हैज़ बीन पुट अंडर अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन, उनके अंदर ट्रेड भी परमिटेड नहीं है। इनका ट्रेड करना, इनको खरीदना बेचना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है विद इन कंट्री और अक्रॉस द बॉर्डर, इनको खरीदना बेचना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एंड दे वर पुट अंडर अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स इन 2016, जब सारे 183 कंट्रीज ऑफ दिस साइट्स कन्वेंशन अग्रीड टू पुट देम इन अपेंडिक्स 1। और ये जो पैंगोलिन्स हैं, इनके 8 के 8 स्पेसीज, 4 जो अफ्रीकन स्पेसीज हैं और 4 जो एशियन स्पेसीज हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन पुट अंडर अपेंडिक्स 1, मतलब उनके अंदर ट्रेड, उनको खरीदना बेचना अलाउड नहीं है। अब करंट न्यूज़ देखते हैं, करंट न्यूज़ क्या है। तो देखो, चाइना के 2 साइंटिस्ट हु बिलोंग टू साउथ चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है ये जो कोविड-19 वायरस है दैट हैज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम पैंगोलिन्स टू ह्यूमंस, और हो सकता है कि वो पैंगोलिन्स में बैट से आया हो, बट अल्टीमेटली
सिंस ह्यूमंस हैव कंज्यूम्ड पैंगोलिन्स, उस कारण से इट हैज़ नाउ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस। और एक बार ह्यूमन में ट्रांसमिट हो गया, उसके बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है और ये इतना फास्ट तरीके से फैल रहा है। उन्होंने प्रूफ किया है कि जो एक सब स्पीसीज है पैंगोलिन्स का, दैट इज सुंडा पैंगोलिन, दैट ऑलरेडी कैरीज कोरोना वायरस, एंड दोज पीपल हु ईट पैंगोलिन गेट infected with this COVID-19 virus and then they spread it in other human beings। वैसे ये रिपोर्ट पूरी तरह से कंक्लूसिव नहीं है, फिर भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और इस रिपोर्ट के बेसिस पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने फुल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है ऑन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ पैंगोलिन्स, एट द सेम टाइम कंजम्पशन ऑफ पैंगोलिन्स। तो इसके ऊपर इसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पैंगोलिन्स को, ताकि कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोका जा सके। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है पूरी दुनिया भर को कि आप पैंगोलिन्स के कंजम्पशन पे, उसके ट्रेड पे पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाएं। अब देखो ये रिपोर्ट सही है या नहीं, ये इतनी आसानी से प्रूफ हो नहीं पाएगा, बट फिर भी पैंगोलिन्स इस साल के लिए न्यूज़ में आ गए हैं, तो पैंगोलिन्स से रिलेटेड कोई ना कोई एक सवाल प्रीलिम्स में ज़रूर आ सकता है। The next article is taken from Assam segment. It is about राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स। वैसे तो ये जो टॉपिक है इससे सीधा सीधा सवाल सिर्फ प्रीलिम्स में आएगा, लेकिन यहाँ पे जो भी आइडियाज़ हम डिस्कस करेंगे दैट कैन बी यूज्ड इन मेंस एज सप्लीमेंट्री पॉइंट्स। एक बार ज़रा न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, असम की स्प्रिंटर हिमा दास हैज़ बीन नाउ नॉमिनेटेड फॉर प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम। ध्यान देंगे, नॉमिनेट किया गया उनको। असम सरकार ने रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हिमा दास को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में दिया जाए। तो अभी इनको नॉमिनेट किया गया है, देखते हैं इनको ये अवार्ड इस साल मिल पाता है या नहीं। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, सी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रैक एथलीट टू विन ग्लोबल टाइटल एट अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन टैम्पेयर फिनलैंड इन 2018। इसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आई थी। सो दिस इज़ हर फर्स्ट मेजर अचीवमेंट। और इस साल इनको नॉमिनेट किया है असम गवर्नमेंट ने फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। लेकिन बाकी सारे जो नॉमिनीज़ हैं जिसके अगेंस्ट ये कम्पीट करेंगी वो हैं नीरज चोपड़ा, हु इज़ ए जैवलिन थ्रोअर, रेसलर विनेश फोगाट, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, वुमेन हॉकी टीम कैप्टन रानी रामपाल एंड क्रिकेटर रोहित शर्मा। तो इन सारे स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में कुछ लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। एक बार जरा सा इंडिया के अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं उनको भी ब्रीफली देख लेते हैं। तो देखो, जो सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है उसको वो होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। स्पोर्ट्स के फील्ड में जो हाईएस्ट अवार्ड है दैट इज़ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इट इज़ हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया। The recipient is honored for their outstanding performance in the field of sports over a period of 4 years in इंटरनेशनल लेवल। तो 4 सालों से ज़्यादा उनका डायरेक्ट और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होता है, तब जाकर के उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। दिस अवार्ड वाज स्टार्टेड इन 1991-92 और जो इसके पहले विनर थे या पहले रिसिपिएंट थे वो थे चेस के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नीचे आता है, उससे लोअर लेवल पे आता है अर्जुन अवार्ड। और उसके अलावा स्पोर्ट्स फील्ड में अवार्ड होते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोचेज को दिया जाता है, ट्रेनर्स को दिया जाता है। उसके अलावा है ध्यान चंद अवार्ड जो एक तरह का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, मतलब वो प्लेयर जो रिटायर हो चुके हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। और उसके भी नीचे आता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 446 to 448. 446 is about ban on RO filters. So recently Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has issued a draft notification that seeks to ban membrane-based water purification system, primarily reverse osmosis, in areas where water supply meet norms. So ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने एक तरह का नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, मतलब ये फाइनल नहीं हुआ है लेकिन एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने प्रपोज किया है कि वो सारे एरिया जहाँ पे वाटर सप्लाई एक नॉर्मल नॉर्म्स को मीट करता है, मतलब एक बेसिक स्टैंडर्ड को मीट करता है, वहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस वाला फ़िल्टर अलाउ नहीं किया जाए। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाला जो फ़िल्टर होता है उसमें खाली 20% वाटर ही यूज होता है, बाकी 80% वाटर को वो वेस्ट की तरह रिलीज़ कर देता है। तो इस कारण से वाटर की वेस्टेज बहुत होती है। अगर WHO का स्टैंडर्ड देखा जाए तो वो सारा वाटर जिसके अंदर TDS लेवल मतलब टोटल डिजॉल्व सॉल्ट लेवल 30 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, वो वाटर का
क्वालिटी एक्सेलेंट माना जाएगा, जिसका 300 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेलेंट। जिसका 900 मिलीग्राम पर लीटर या उससे कम है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पुअर। जिसके अंदर 1200 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा है पर लीटर टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनएक्सेप्टेबल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन अभी के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सारे एरियाज़ जहाँ पे भी जो वाटर सप्लाई है उसकी क्वालिटी के अंदर अगर टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स का डेंसिटी कंसंट्रेशन 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, यानी कि वहाँ का वाटर अच्छा है, यूजेबल है, और वहाँ के लोग आरओ फिल्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नोटिफिकेशन उन्होंने ड्राफ्ट में रिलीज़ किया है, लेकिन अभी उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। नेवरदलेस ये आने वाले प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा जा सकता है, आरओ फिल्टर किस तरह से काम करता है या टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये सब सवाल कुछ आ सकते हैं। हाँ, मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि वो जगह के लोग यूवी फिल्टर ज़रूर यूज कर सकते हैं। यूवी फिल्टर से जम्स मारे जाते हैं, लेकिन वाटर का वेस्टेज नहीं होता है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक नंबर 447 इज अबाउट मेडिकल इक्विपमेंट्स क्लासिफाइड एज ड्रग्स। तो देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ नोटिफाइड दैट फ्रॉम अप्रैल 2020 all medical equipments would qualify as drugs under Drugs and Cosmetics Act of 1940। तो देखो, ड्रग्स की तरह क्लासिफाई करने से एक फ़ायदा क्या होता है ना, कि उसके प्राइस को, उसके सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है भारत सरकार। भारत सरकार की एक एजेंसी है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। वो ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल कर सकती है कि आप लिमिट लगा सकती है कि आप इससे ज़्यादा महंगा नहीं बेच सकते। लेकिन हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी कि जो ये मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन, एमआरआई इक्विपमेंट्स, ये काफ़ी महंगे बेचे जाते हैं और इस कारण से ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटीज़ का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो अब भारत सरकार ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करके इन सब को भी ड्रग्स की कैटेगरी में डाल दिया। इसका सरल शब्दों में मतलब ये है या फ़ायदा ये होगा कि अब इन सब इक्विपमेंट्स के भी, मेडिकल इक्विपमेंट्स के भी प्राइस को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अब रेगुलेट कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा। सो इससे ओवरऑल मेडिकल फैसिलिटीज़ का कॉस्ट कम होने की उम्मीद है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक नंबर 448 इज अबाउट इनसाइट्स मिशन ऑफ नासा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नासाज डिस्कवरी प्रोग्राम। InSight mission is the first on the surface of Mars to detect magnetic signals with help of magnetometer. InSight is the first mission dedicated for looking depth beneath the Mars surface. InSight mission finds that Mars does not have tectonic plates like Earth, and the findings of Mars formation will help better understanding how other rocky planets including Earth were and are created. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 443 to 445. 445 को मैं यहाँ ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, 445 में मैंने जो ऑप्शंस दिए थे उसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। आई एम सॉरी फॉर गिविंग यू रॉन्ग ऑप्शंस। उसमें सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट था, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं था। बाकी के आज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 446 टू 448, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.